Hello and welcome to the press conference of the SWA Awards 2020 to announce the jury of the feature films, and also they will announce the nominees in 4 categories. Every award ceremony says that they are hatke, but SWA Awards is truly mega hatke because for the first time it's putting writers center stage, writers who have been the backbone and spine of every film but have been relegated to the sidelines in every award ceremony. SWA Awards 2020 recognizes the individual power of each component of screenwriting, story, screenplay, and dialogues, and awards the best in writing judged by screenwriters themselves. We are very honored to have screenwriters of such eminence as jury members, and we are excited to hear their views about the current scenario of screenwriting in India. I welcome all of you, the press and the jury members and the EC members. Can I please ask Robin Butt, the President SWA, to speak a few words, please? नमस्कार। आज की सभा में सबका स्वागत है। हम इस साल डायमंड जुबली ईयर मनाने जा रहे हैं एसडब्ल्यूए का, और इसीलिए इस साल से हमने तय किया है कि हम अवार्ड देंगे। आज के अवार्ड में चलचित्र यानी सिनेमा, अंधेरे हॉल में जो लोगों को सपने दिखाते हैं वो राइटर्स, उनके नॉमिनेशन जाहिर करेंगे। ये वो लोग हैं जो सही टाइम पे पूरे हॉल को हंसाते हैं एक साथ, या सही टाइम पे रुलाते हैं, सही टाइम पे डराते हैं, सही टाइम पे गुस्सा दिलाते हैं। टाइम आ गया दोस्तों, इनको सराहा जाए, उनको सम्मान दिया जाए, और उसके लिए हमने ये अवार्ड शुरू किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द राइटर्स, awards for the writers, by the writers, from the writers. Thank you. Thank you so much, Govinda. Wonderful words. Can I please ask Sunil Salgia ji, General Secretary, SWA, to speak a few words? Hello everyone, and I welcome you all on behalf of Screenwriters Association. फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि कहानी किंग होती है। कहानी किंग होती है, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं। तो क्यों ना उस किंग को बनाने वाले, उस किंग को स्थापित करने वाले, उस किंग को इस दुनिया में लाने वाले राइटर्स को हम रिकॉग्नाइज करें। अक्सर ये होता है कि अवार्ड्स में बड़े बड़े सितारों की रोशनी में राइटर्स को पहचान नहीं मिल पाती। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का ये अवार्ड राइटर को सेंटर स्टेज रखता है। हमारे लिए राइटर्स वो स्टार्स हैं जिन्होंने इन सारे किंग्स की किंगडम्स को स्थापित किया है, तो हम उन्हें सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे भी स्क्रीन राइटिंग बाकी सारी विधाओं से बहुत ही मुश्किल विधा है। मैं अपना सफ़र इस इंडस्ट्री में एक एडिटर से डायरेक्टर, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से राइटर के तौर पर आया हूँ मैं, और मुझे ये समझ में आता है कि स्क्रीन राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्राफ्ट। और इसमें अगर जरा भी गलती हो जाए तो जो करोड़ों रुपए और जो एक बड़ी फौज उसके पीछे लगी होती है, उन सब का नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली इट इज राइटिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उसको सम्मान देना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए ये अवार्ड है। थैंक यू। Thanks so much, Sunil ji. Can I please ask Anjum ji to speak a few words as the EC member and also, of course, the Karta Dharta of screenwriting? Hello, wonderful to be here, and thank you very much all the people and friends in the media who are here. You know, it is often been repeated, too often. It's become almost like a cliche, and I've heard it for the last 30, 40 years, that every time a director or a producer is asked, what is the most important thing of a film? Each one will, without hesitation, spout a good script, a good script, a good script. And then I started looking around to see what is the prominence that the script and its author, the scriptwriter, is actually receiving in this business of showbiz. I mean, showbiz is about show business, showing. Nowhere. In the awards, it used to be that the writers category used to usually get relegated to the technical category. And this used to, of course, hurt personally and hurt on behalf of the community itself.
And then I'm afraid I'm going to say something rather delicate here. When you cast a glance at the jury of those awards, you realize that very few of them, if at all, are genuinely qualified to be able to understand the script, its vicissitudes, its subtext, its characterization, all these elements which actually go into directing a film, into really directing the director. Generally, the confusion is that the director's job is confused with the script. The performance is confused with the script. And that clarity was never really felt adequately ever. And writers invariably felt cheated by that. So here steps SWA. I mean, in the right way, because SWA is the representative of nearly 30,000 writers. So it was their job to take a lead in this and try and rectify along all the fronts that we are fighting to ensure that enough changes come about so that the writer, as these gentlemen have said, begins to move center stage. And that has been the motto of SWA. This is yet another step in that direction. And I suspect one of the biggest, one of the more prominent, and one of the most important steps that SWA has taken. So this is truly a matter of pride for the entire community that SWA has finally gone and instituted awards. Now, the most important component of the awards, I feel, is not the organizer, is not the material which is going to be received, but the jury. If the jury is not knowledgeable, if the jury doesn't have integrity, if the jury doesn't have sufficient nuanced understanding of what is the meaning of writing, so awards can be a complete failure. SWA awards will be reduced to just a name by the writers, of the writers, for the writers. And it is here that I think is the biggest breakthrough and the matter of greatest pride for this edition of the awards. The juries that we have managed to garner, managed to invite, and those who have actually agreed to come on board this rather arduous task, that is really a matter of gratitude. हिंदी में कहूँ तो ये लोग आते हैं SWA के अवार्ड्स की जूरी बनने के लिए, ये बहुत बड़ा एहसान करते हैं SWA पर और सारी लेखक समाज पर ये एहसान करते हैं. और आज हमारे सामने जो हैं शख्स जिनसे अभी आपकी मुलाकात होगी, I mean, these are really genuinely, individually they have been invited because of the particularity of their understanding here. And they have not failed us. I don't know who the nominees are. I am very curious to find out. Okay. But the fact is, we have complete confidence because the process was impeccably transparent. And hence, my gratitude to all the members of the jury, two of them who are not here also, and of course to the awards committee. I mean, stellar work, which has ensured that the credibility of this awards initiative is absolutely intact. So this is really a very proud moment for a member of the executive committee of SWA. And I cannot tell you how delighted I am, and I'm keenly looking forward to the 27th. This is going to be great. Thank you, Sridhar. Thanks a lot, Anjum, for your very wonderful words. Now we're going to reveal the jury. Please turn on their video and audio, all the jury members, and also Anjum and Sunil ji and Robin ji, please. So thanks everyone for joining in. This is a great moment. Can I please ask Ashok Mishra ji to speak a few words about the process of the jury and what it means, the SWA Awards? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि SWA ने एक बहुत अच्छी पहल की है और ये बहुत समय से उम्मीद की जा रही थी सिनेमा लेखकों की कि वो इस तरह का अवार्ड हम क्यों ना शुरू करें. तो मुझे बड़ी खुशी है कि अंजुम रजब अली जी और रॉबिन जी
सालगिया जी, इन लोगों की कोशिश, और भी तमाम लोग हैं जिनकी कोशिशों से ये अवार्ड शुरू हुए हैं। ये अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं कि हम अपनी बिरादरी को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। हम दूसरों से क्यों उम्मीद करें कि वो हमको रिकॉग्नाइज करें, पहले हम खुद को तो रिकॉग्नाइज करें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, और इससे राइटिंग का जो स्तर है वो काफी सुधरेगा, उसमें एक तरह की हाइट आएगी। लोग अब इस अवार्ड के लिए भी अच्छा लिखना पसंद करेंगे, उनमें गहराई आएगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड बन जाए सिनेमा का, जल्दी से जल्दी। हर साल इसमें तरक्की हो, हर साल हम लोग तरह तरह के सुधार करें जिससे ये और प्रभावशाली हो सके और देश के लेखकों के लिए ये एक आकर्षण का विषय बन जाए। धन्यवाद। Thank you so much, Ashok ji. Can I please request Atul Tiwari ji to speak a few words? Thank you, Sridhar, and welcome all the friends from the press. इस कोरोना काल में, जबकि हम सब लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन में बंद थे, तो खाने की सप्लाई, दवाई की सप्लाई तो घर में हो जाती थी, लेकिन दिमाग की सप्लाई, अगर जब अखबार भी बंद थे और सिर्फ अर्नब गोस्वामी से काम चलाना पड़ रहा था, तो अगर दिमाग की सप्लाई और दिमाग को ठीक करने का काम अगर किसी ने रखा है तो हमारे स्क्रीन्स ने रखा है, OTT प्लेटफॉर्म से रखा है। वो जो फिल्में हम तक पहुंचती थी, चाहे टेलीविजन के जरिए चाहे OTT प्लेटफॉर्म से, उन्होंने रखा है। और उसमें खास करके अचानक बड़ी बड़ी फिल्मों का भी स्क्रीन छोटे हो जाने के बाद में जो चीज़ सबसे उभर के आती थी वो था फिल्मों का लेखन, फिल्मों की कहानी, उनके संवाद, उनकी पटकथा। उनकी वजह से लोग बंधे रहे हैं और उनकी वजह से बहुत से दिमाग हिंदुस्तान में ठीक रहे हैं। इस काल में ही हमारा अवार्ड होना और पहला अवार्ड होना, हम चाहते तो नहीं थे कि ऐसा हो, मगर इस जमाने में ही जबकि सिनेमा ने सचमुच घर घर पहुंच करके हम सब का दिल दिमाग ठीक रखने का, दुरुस्त रखने का काम किया है, हमारा पहला अवार्ड हो रहा है। और जैसा अशोक जी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि ये राइटर्स का अपना पहला अवार्ड है, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मुझे भी इस एस्टीम्ड पैनल में बैठने का मौका मिला, जो राइटर्स को अवार्ड देने के लिए, चाहे वो डेब्यू कैरेक्टर के हों के अवार्ड्स हों, चाहे डायलॉग्स के हों, चाहे बेस्ट स्टोरी के हों या स्क्रीन प्लेस के हों। इतने बड़े बड़े, इतने अनुभवी लोगों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ मुझे बैठ के, अपने साथियों के साथ बैठ के मुझे भी यह मौका मिला इन अवार्ड्स को चुनने का। इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूँ आप सबका, और आई एम श्योर दैट दीज अवार्ड्स आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एज अंजुम सेड इन द बिगिनिंग, फॉर दिस राइटिंग कम्युनिटी। थैंक यू। Thank you so much, Atul Tiwari ji. Can I please request Saket Chaudhary to speak a few words? Hi, welcome everyone. I'm very honored to be on the panel of this esteemed jury. The Screenwriters Association has for years fought, struggled for the rights of all free screenwriters. And I think these awards, they are another step towards recognizing what is one of the most important steps in filmmaking. And this step is usually ignored or relegated, like Anjum said, to just technical categories. But there is no greater art, no greater creativity than screenwriting. And these awards recognize that. So I'm very happy that these awards have been constituted. Thank you. Thanks a lot, Saket. Can I please ask Urmi Juvekar to speak a few words? Welcome everyone. And the problem when you have to be the sixth one to speak, everyone has said what the most important things. So, I'm just going to reiterate. Number one, it was so needed, having worked in the industry for so long, that real recognition of the work we do, the nuances of it. And I think it was high time to sort of say that, well, we do this and it's really commendable, a job that we do. Secondly, also, I think it's one of the nice things to have happened to me during this Corona time, because we saw the films, we talked to each other, great jury meetings happened. And I'm really looking forward to these awards and the process and what comes up next year. So I just hope it goes on. Thank you.
Thank you. Thanks a lot, Urmi. Wonderful words. Can I please ask, last but not the least, the great Vinay Shukla ji to speak a few words, please? Thank you. वेलकम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरे दोस्तों ने पहले ही कह चुके हैं कि इस अवार्ड्स का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर भी एक बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कि हमने इस का जब अवार्ड्स का जब चयन किया तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान रखा वो था सिर्फ राइटिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हम फिल्म रिव्यूअर्स वगैरह का देखते हैं कि वो एक्टिंग की तारीफ करते हैं, सिनेमाटोग्राफी की तारीफ करते हैं, सारा ध्यान जो है और बहुत सारी विधाओं पर चला जाता है और ये प्रोसेस जो है वो पॉपुलर अवार्ड्स में भी होता है। लेकिन इस अवार्ड्स में हमारा फोकस किसी और बात पर नहीं था सिवाय इसके कि राइटिंग कैसी है। जब पेपर पे राइटर ने लिखा होगा तो क्योंकि हम सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं इस क्राफ्ट के, तो हम उसके प्रोसेस को समझ सकते थे। हमारी कोशिश ये थी कि जो राइटर ने लिखा है उसके दिमाग तक फ्रॉम द प्लेस ही वाज राइटिंग वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट। और उसका जो नतीजा ये निकला कि हमने जो भी अवार्ड्स दिए हैं, देखिए कंपैरिजन तो हो सकता है हमेशा, देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज, बट फॉर्चुनेटली अमंग दीज ज्यूरी मेंबर्स देयर वाज यूनैनिमिटी एंड ऑल ऑफ अस फेल्ट कि ये जो फिल्में हैं जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं ये बेस्ट काम है। और इससे आई एम श्योर दैट there would be a lot of excitement in the fraternity. And secondly, I hope, and that is what our attempt is going to be, that these awards become the most prestigious awards for the writers. Thank you. Thanks a lot, Vinay Shukla ji. Can I please now, we are now ready to announce the nominations. So that's an exciting time. That till now everything has been hidden. Right now, nobody knows the nominees. So can I please ask Saket Chowdhury to announce the nominees for the feature film's best debut? Hi, and these are the nominees for best debut writer. Devanshu Singh and Satyanshu Singh for Chintu Ka Birthday. Sandeep Pandey for Chausar Firangi. Ravinder Randhawa for Hamid. Adish Keluskar for Jau Kahan Bata De Dil, and Ivan Iyer and Kisley for Sony. Congratulations to all the nominees. May the best win. Can I please ask Ashok Mishra ji to announce the nominees for the feature film's best dialogues? डायलॉग्स जैसे जिंदगी में जरूरी होते हैं वैसे सिनेमा में भी बहुत जरूरी होते हैं। और इस बार के इस पहले SWA फिल्म्स राइटिंग की तरफ से जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उसमें नॉमिनी हैं अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी फॉर आर्टिकल 15, नीरेन भट्ट और फॉर बाला, विजय मौर्य फॉर गली बॉय, रविंद्र रंधावा एंड सुमित सक्सेना फॉर हामिद, सुदीप शर्मा फॉर सोन चिरैया। Congratulations to all the nominees. Then can I ask Urmi Juvekar to read out the nominees for the feature film's best story? The story, where it all begins. So we have the nominations here. The first nomination is Anubhav Sinha and Gaurav Solanki for Article 15, Devanshu Singh and Satyanshu Singh for Chintu Ka Birthday, Reema Kakti and Zoya Akhtar for Gully Boy, Abhishek Chaubey and Sudeep Sharma for Son Chiriya, and Ivan Iyer for Sony. Congratulations to all the nominees. Can I please request Vinay Shukla ji to announce the nominees for feature film's best screenplay? Nominees for the best screenplay are Anubhav Sinha and Gaurav Solanki for Article 15, Niren Bhatt for Bala, Devanshu Singh and Satyanshu Singh for Chintu Ka Birthday, Reema Kakti and Zoya Akhtar for Gully Boy, Vasant Bala for Mard Ko Dard Nahi Hota.
So congratulations to all the nominees. Now I'm going to play the nominee video. Congratulations to all the nominees. The actual winner will be announced at the online award ceremony on September 27th. So all of us are looking forward to the winning announcement on September 27th. So there are a few questions from the press. So I'm going to address it one by one to the people whom they've sent it to. Anjumji, for you, the first question is, what's the language that today's writers use most often? This seems to have been a current question because हिंदी दिवस भी जो अभी आके गया उस वक्त भी आई थिंक अखबारों ने ये काफी इसके ऊपर चर्चा की थी जो बड़ी अच्छी बात है. I would say given my experience लगभग 50-50 बटा हुआ है कि जो आपस में जो बातें होती है डिस्कशंस जो होते हैं I would say 50% जो है वो हिंदी में होते हैं 50% अंग्रेजी में होते हैं. और देखने वाली बात ये है कि अगर ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम में अगर पढ़ाई लिखाई हो रही है एजुकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट इज एक्सेप्टेड बाय दोज पीपल एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज. ओके, मेरा भी वही हाल था. ये अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आए फिर उसके बाद हिंदी सिनेमा में लिखने के लिए कोशिश की तो स्क्रीन प्ले का हिस्सा जो था वो तो अंग्रेजी में लिख दिया. जहां डायलॉग का सवाल आया तो लड़खड़ा गए एकदम. हिंदी सिनेमा है, हिंदी फिल्म देख के पले पड़े हैं, हिंदी फिल्म लिखने जा रहे हैं, लेकिन तकलीफ तो थी. तो इसके लिए आई हैड टू रीट्रेन माई सेल्फ. ओके, और अच्छे थे ज्ञानी लोग जो यहाँ इनमें एक है विनय शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, उनसे काफी कुछ प्रेरणा भी मिली, सीखने को मिला. और बाकी लोग हैं यहाँ अतुल तिवारी है वगैरह, ये जो है अशोक मिश्रा साहब है जो एक्चुअली हिंदी ट्रेडिशन से आए हुए हैं. ये बड़े खुशनसीब है दरअसल देखा जाए. समाज में ये माना जाता है कि भैया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आओ तो तरक्की होगी. यहाँ हमारा ये मानना है कि अगर हिंदी सीख के आओ तो हिंदी सिनेमा सही तरीके से लिख पाओगे. बट या यू आर राइट, आई मीन इट इज डिवाइडेड आई वुड से इक्वली बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश. Thanks a lot, Anjum ji. The next question is to Vinay Shukla ji and Urmi ji. Can you tell something about how the contemporary writing has evolved vis-a-vis the older style of writing? What do you see the changes about? You would like whom to answer first? Vinay Shukla. Okay. ऐसा है कि जिस तरह वक्त बदलता है, लगातार बदलता रहता है, उसी तरीके से अब राइटिंग में भी बहुत चेंज हो गया. 70s, 80s, 90s ने एक तरह से देखा जाए तो 50s और 60s का जो पैटर्न था राइटिंग का
उसी को जो है फॉलो किया। और धीरे धीरे मेरा ख्याल से ये चेंज आना शुरू हुआ एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, जबकि ये मल्टीप्लेक्सेस आ गए थे। और उसके बाद से शुरू के दौर में अगर आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी फिल्में आई थी, तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि मल्टीप्लेक्सेस की वजह से लो बजट फिल्म्स को जो है बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा, और वो जो है डिफरेंट जॉनर्स जो हैं वो उनको जो है उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन कुछ ही टाइम में वो जो है वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो दौर आया है उसमें एक तो देखा जाए तो स्टोरी टेलिंग का बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। वो जिनको हम फॉर्मूला समझते थे या जिन इंग्रेडिएंट्स को समझते थे कि ये ज़रूरी है, बारिंग सम फिल्म्स ऑफ बिग स्टार्स, अब स्टोरी टेलिंग का पूरा देयर इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज दैट हैज कम। और उसके लिए मतलब सबसे ज़्यादा तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी और जो समाज में जो चेंजेस आए हैं वो हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो एक और बात हुई है कि पिछले कुछ सालों से ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स का जो आया है चलन, और जो लोग उसको जो देख रहे हैं, तो उनसे जो है हमारी पूरी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी चेंज हो गई है नाउ। अच्छा, एंड द अदर थिंग दैट हैपेंड वाज द चेंज इन अवर सोशल वैल्यूज। देयर वाज जिन वैल्यूज को हम पहले सैक्रोसेंट समझते थे, अब ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीजें जो हैं, अब जो समाज का एक तरह से देखा जाए तो जो समाज में है उसका काफी क्लोज एग्जामिनेशन होता है अब की कहानियों में। तो ये एक चेंज आया है, एंड देयर इज अ सर्टेन कंटेम्परेरी सेंसिबिलिटी दैट यू कैन सी इन टुडेज राइटिंग। Thank you. A lot, Vinay ji. Can I ask Urmi to reply to the same question, please? I think Vinay ji has really pointed out how things have changed. I just have one thing to add to that, and I think that has to do with our understanding of the world is continuously evolving. How we looked at ourselves 50 years back is not how we look at ourselves or understand our society with the same lens anymore, because as societies develop, knowledge increases, more and more lenses start getting added to the way we view ourselves. So obviously there is a basic change which will happen regardless of which time, because of course the films of 60s were different from 40s and 70s were different from 60s. So apart from all of what Vinay ji has said, for me what is very, very important is that today we have a far more nuanced understanding of the world around us. We understand the complexities, and as writers, all of us are bringing that complexity to our writing. So yeah, that is how I look at it. Thanks a lot, Urmi. Can I please request Atul Tiwari ji to answer this question? Please tell us your all-time favorite writer in films, and also your best writing in Hindi film in recent times. Well. This is a very tough question to answer. To give one best writer, and I think, as Kurosawa used to say, that filmmaking is a collaborative job, and if at all I have to give, I'll have to name one of my favorite Hindi films, which has been Mughal-e-Azam, and which again had a team of writers writing it, not one person, but a team of writers writing it. So I would give that whole team, the way they created the whole scenario, the way they wrote the screenplay, the way they wrote the dialogues. Again, Anjum sir was asked about the language. I mean, the kind of languages which you see through the film, whether it's the Hindi, Shuddh Hindi from Jodha Bhai, or whether it's the Persianic Urdu from Akbar and others, etc., etc. मान सिंह की ज़बान अलग है और सलीम की भाषा अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो आप उस फिल्म में देखते हैं और उसके स्क्रीन प्ले में देखते हैं, और जिस तरह से वो कहानी आज भी पकड़ती है, तो मैं उस पूरी कोलैबोरेटिव राइटिंग को, उस पूरी टीम को शायद अपनी तरफ से कोई इनाम देना चाहूँगा।
जो उन्हें उस जमाने में SWA नहीं दे पाई थी। दूसरी बात आपने कहा कि मेरी अपनी राइटिंग्स में मुझे क्या पसंद है, ये अगेन फिर बड़ा ही मुश्किल सवाल है। अलग अलग वजहों से मुझे अपनी बहुत सी अलग अलग फिल्में पसंद हैं। एक फिल्म जो कि शायद पता नहीं उसको फिल्मों में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, मैंने एक 10 घंटे की फिल्म लिखी है, संविधान जिसका नाम है, जो आपको 1-1 घंटे के एपिसोड्स पे देखने को मिल सकती है यूट्यूब पे। अगर आप संविधान टाइप करेंगे, जो हिंदुस्तान का संविधान कैसे बना, इस चीज़ की कहानी तो मैंने शमा जैदी जी के साथ मिलकर लिखी है। और मेरे ख्याल से ऐसी कहानी कह पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ऐसी कहानी शायद उसको ज़्यादा लोग देखे भी नहीं, हालांकि उसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक देख चुके हैं यूट्यूब पे और दूसरे चैनल्स पे दुनिया भर में। तो एक ऐसी कहानी कह पाना जो सुनने में बिल्कुल असंभव सी लगती है। एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर लिंकन जैसी इतनी अच्छी फिल्म बन सकती है, तो यहाँ तो हम पूरे 356 जो आर्टिकल्स थे उनको लेकर के एक फिल्म लिखने की कोशिश कर रहे थे, और जिस काम में 3 साल लगे थे उसको करने की बात कर रहे थे। वो मुझे अपनी लिखी हुई एक फिल्म पे बहुत अच्छी भी लगती है, और मुझे गर्व है कि मैं उससे जुड़ा हूँ और वो मैं लिख सका। Thanks a lot, Atul ji. Can I please request Ashok Mishra ji to answer this question? एक फीचर फिल्म में राइटर्स को उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का कितना स्कोप होता है? देखिए, क्रिएटिविटी दिखाने का जो मौका होता है किसी लेखक को, ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि वो किनके साथ काम कर रहा है। अगर निर्देशक के साथ उसके समीकरण सही बैठते हैं तो उसके और निर्देशक के बीच में अच्छा तालमेल होता है और लेखक अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। लेकिन अगर निर्देशक के साथ उसकी ट्यूनिंग सही नहीं है तो कई बार बहुत मुश्किल होती है। मैं फिल्में अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म छोड़ी है, इसीलिए मैं 3 साल तक उस फिल्म को लिखता रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये निर्देशक तो कुछ समझ ही नहीं रहा है बात को। वो हर बार कुछ नया सोचता है, हर बार कुछ नया कर देता है सारी चीजों को, तो मैंने छोड़ दिया। तो वहां मुझे लगा कि मुझे सफोकेशन हो रहा है। पर कई निर्देशक ऐसे हैं जैसे श्याम बेनेगल, बड़े निर्देशक हैं, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमती है और मुझे क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे बड़ा सुख मिलता है। जैसे सईद मिर्जा, इनके साथ मुझे बड़ा सुख मिलता है। तो ये अदरवाइज क्या होता है, कई बार इसमें प्रोड्यूसर भी हस्तक्षेप करते हैं राइटिंग पे, कई बार इसमें एक्टर भी हस्तक्षेप करते हैं, तो बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर सबके बीच में अच्छी ट्यूनिंग हो, जैसे बमन ईरानी अगर कुछ चाहते थे मेरे से कि मैं ये चेंज करूं, तो वो 10 बार हाथ जोड़ के पहले कहते थे कि गारू मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, पर मेरी बात आप सुन लीजिए। कई तरीके होते हैं, तो कई लोग इंस्पायर भी करते हैं आपको। और सिनेमा एक तरह का, जैसा कि अतुल जी ने कहा कि कोलैबोरेशन है ये बहुत से लोगों का, लेकिन इसमें हर किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है, और राइटर की तो खास तौर पर। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पे निर्देशक भी सोचे कि कितना स्पेस राइटर को दिया जाए, प्रोड्यूसर भी सोचें। कई प्रोड्यूसर बड़े उदार होते हैं, कहते हैं नहीं हमको बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है आपके काम में। तो राइटर को खिलने का मौका मिलता है, जैसे फूल खिलता है। आप फूल को खिलने से अगर दबाएं दबोचें तो वो नहीं खिल पाएगा। तो राइटिंग भी वैसा ही एक नाजुक काम है, एक कविता लिखने जैसा ही काम है लेखन सिनेमा में। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सपाट सिनेमा बन रहा है, फ्लैट सिनेमा जिसको कहते हैं, वो 80% 90% बन रहा है, क्योंकि उसमें पोएट्री मिसिंग है। पोएट्री इसलिए मिसिंग है कि उसको दबाया जा रहा है, राइटर को खुलने नहीं दिया जा रहा है, उसको आजादी नहीं मिल रही उतनी जितनी मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ राइटर कम हैं, अच्छे राइटर बहुत कम है हमारे यहाँ। कचरा राइटरों की भरमार है, जो भाषा नहीं जानते, जो पोएट्री नहीं जानते, लिटरेचर नहीं जानते। तो इस सब के साथ जब हम ऐसे राइटर आते हैं, और ऐसे राइटर क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हस्तक्षेप बहुत है यहाँ। नहीं तो कितने हमारे यहाँ राइटर हैं देश में, एक से एक कहानीकार है। अगर वो आ जाए तो भारतीय सिनेमा बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। लेकिन वो इसीलिए नहीं आते कि यहाँ राइटर को बहुत घेरा जाता है, हर कोई उसके काम में टांग अड़ा देता है। इवन कि चाय लेके कोई आता है स्पॉट बाय, वो भी कह देता है कि इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो ये सब हम महसूस करते हैं, और इससे ही आजादी के लिए ये पुरस्कार
तैयार किया गया है, ये अवार्ड बनाए जा रहे हैं कि राइटर को सम्मान दो, पहले तो राइटर को हाइट दो, उसे आजादी दो, उसे लिखने दो। सही राइटर चुनो ना आप, एक बार चुन लो आप सही राइटर कि ये राइटर मेरे टेस्ट का है, ये मुझे पसंद है दिमागी तौर पे, फिर उसको आजादी दो, फिर उसके ऊपर सवार मत हो घोड़े, उसको घोड़ा मत बनाओ अपना। चलिए, धन्यवाद। Thanks a lot, Ashim. Thank you. Thanks a lot. I have a related questions. Anybody can answer. What's your take on actors taking writing credit? Atulji, you want to go for it, or Vinay, whatever? Who wants to go for this? Yeah, I think we have two director writers here. They should be answering it. Saket ji is here, Vinay ji is here. Okay. And they could be the people. I would also like to add something, but let them go first. We have not heard from them. Okay. Saket, If an actor has actually written the script, then they're most welcome to take the credit. But if the actor has only sort of indicated कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, or they've given suggestions, then I think it's a very unfair expectation for an actor to get a credit. क्योंकि writing एक collaborative process है और उसमें हर piece का अपना एक importance है, actors अपना contribution लेकर आते हैं, but it's like saying कि director actor को बोलता है कि आप ये scene में ये करिए. A director can't take the credit for an actor's acting. Similarly, an actor cannot take the credit for a writer's writing. Thank you. Vinay ji? देखिए ऐसा है कि क्योंकि वो स्टार्स होते हैं, ये सिर्फ स्टार्स ही करते हैं ज़्यादातर, वो मतलब नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आप जानते हैं कि किनकी तरफ मेरा इशारा होगा कि सबको नाम मालूम है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जो है, अभी आपने एक कहानी का आइडिया दे दिया, आपने एक्चुअली कुछ नहीं लिखा, आपने कहा कि एक ऐसी कहानी चाहिए। अब वो लेखक जो है वो बेचारा दिन रात मेहनत करके जो है सफ़े भरता है, और पता पड़ा कि वो एक्टर ने, क्योंकि वो अपना जो है आइडिया दिया था, वो क्रेडिट ले लेता है एक्चुअली। और ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, बहुत से डायरेक्टर्स के साथ भी होता है। बहुत से डायरेक्टर्स भी ये जो है, उनमें भी ये बीमारी होती है क्रेडिट लेने की, कि उन्होंने जो है वो बैठ के, एक हमारे यहाँ डायरेक्टर्स अक्सर कहते हैं कि यार कौन लिख रहा है स्क्रिप्ट, लिख क्या रहा है यार, लिखवानी पड़ती है। तो ये जो एक चला हुआ है कि क्रेडिट लेने का, राइटर का क्रेडिट, शायद अतुल ने कहा था या किसने कहा था कि वो चाय वाला भी जो आता है वो भी आपको बीच में अगर डायलॉग सुनता बोले ये डायलॉग सब पसंद नहीं आया, तो वो ये इस तरीके का। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली, एंड दिस इज वेयर एसडब्ल्यू कम्स इन, यू नो, कि पिछले कुछ सालों से एसडब्ल्यू में जो मेंबर्स हैं और जिस तरीके से एसडब्ल्यू का ट्रस्ट है, उसमें ये लगातार कोशिश हो रही है कि राइटर जो है अपनी इम्पोर्टेंस को पहले खुद पहचाने और वो मना कर दे कि साहब मैं किसी के साथ जो है क्रेडिट शेयर नहीं करूँगा। और जब तक ये नहीं होता, और होने लगा है काफी, मतलब नए राइटर्स को अगर आप अप्रोच करें तो यू विल फाइंड दिस इन देम। तो ये जो है, अब ये देखिए हालात और सूरत बदलेंगे। Thank you. Either, since you asked me first, I would like to add something to it. And let me add a little story. There's a wonderful film called Garam Coat. बलराज साहनी साहब की फिल्म है, उसमें जीवन जी ने एक रोल किया था। जो जिस ऑफिस में ये लोग काम करते हैं वहाँ पे जीवन जी भी काम करते हैं, और लंच पे कोई दाल लेके आता है, कोई सब्जी लेके आता है, कोई सलाद लेके आता है, और जीवन जी जो है कभी कुछ लेके नहीं आते हैं। उनका नाम है नींबू निचोड़। वो सिर्फ एक नींबू लेके आते हैं और उसके बाद में वो कहेंगे क्या ये भी कोई दाल है, और उसमें अपना जरा सा नींबू निचोड़ देंगे, सब्जी में जरा सा नींबू निचोड़ देंगे, सलाद में जरा सा नींबू निचोड़ देंगे और कहेंगे लो भाई मेरी दाल खाओ, बहुत अच्छी बनी। तो ये जो नींबू निचोड़ हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो नींबू निचोड़ों का खाना नहीं हो सकता है। वो खाना उसी बेचारे आदमी का या औरत का होगा जिसने बना के उनको टिफिन में लगा के प्यार से दिया था। तो ये नींबू निचोड़ों की कौम से हम सब राइटरों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अरे one second. May I please? Yeah, if you don't mind. See, there is also an extremely serious contractual dimension here, and I think we need to air this.
if the friends from the media are keen to understand how this gets enforced. Vinay was right in saying that writers have begun to resist that, but we also need to see whether writers are being given that legal leverage, that legal power, authority to be able to resist it. Because most contracts coming from studios, from platforms, as well as from large production houses have this crazy clause there, which says the final credit of the writer will be on the discretion of the producer. The discretion of the producer. You are hiring somebody for a particular function. He's writing your screenplay. You are paying him to write your screenplay. He's writing his screenplay and giving it to you. How does it become your discretion to decide? That is number one. Number two thing is this, that while we have been functioning with an oral tradition, an oral methodology for a very long time earlier, where stories would get discussed, sometimes they would literally get constructed orally, with perhaps just some points written down on a sheet of paper as reminders, and it would be orally constructed, recited. Fair enough. But that is over. When you have professionalized it here, the simple thing is that if you're a writer, then it's important for you to write a draft. You want co-writing credit, you need to be able to show that you've actually written a full draft. Directors are one big sort of group of culprits here, because when they give feedback, and that feedback might contain suggestions, they might contain critiques, they might contain some other kind of sort of responses there. As a director, it is your job to be doing that. If you're coming in as a writer and actually saying that I am giving writing input, then write a draft. Merely because you've given a couple of ideas as a director, it doesn't mean you get credit. A director is meant to give ideas even to the production designer. That no, I don't think this color would particularly go well here. Why don't you try green? And he does green, it gets approved. So does that mean that he is a co-production designer? Yeah. And I think this is a very serious business. So this is also where SWA is coming in, as I think Atul also mentioned here, that, and Vinay also mentioned, that certain protocols are being laid down as to what is it that you need to have contributed to a script to qualify for a co-writing credit. There is quantification. There is a whole process being put into place. Credit arbitration is going to be very critical for the future, because on the basis of the credits accorded, royalty is going to be determined. And that royalty means throughout the lifetime of that writer, plus 60 years after his death. So you're telling me that a director who's given 3 suggestions, and because the producer insisted, because he wanted to keep the director happy, so he gave him a co-writing credit. So for those 3 suggestions that he has given, for the next 40 years of his life and 60 years after his death, for the next 100 years, he's supposed to get royalty. I mean, this is a criminal system which we have here. And this is what we are fighting. And we're going to put this fight into high gear very soon. That if producers are unable to see reason in this and change those clauses in that, and not allow SWA to handle the credit arbitration completely, then I'm afraid there is going to be a confrontation. Because this is extremely important. Those days are gone when people would laugh, saying, "Ah, maine likhi hai, likhwana padta hai." Thank you very much. Write and show me. Okay, so I think we have to take this very seriously, and this is the confrontation of today, which is going to go into high gear now soon. Thank you so much, Anjum ji, for your very passionate words. A related question to Robinda. Why have we taken so long to give credit to writers? Why didn't Indians develop their writers earlier, even though everyone agrees that writing is a crucial part of filmmaking? Well, कोई सामने से कुछ देता नहीं है, मुझे लगता है छीनना पड़ता है. सलीम जावेद साहब ने अपनी क्रेडिट छीनी थी. पंडित मुखराम शर्मा का नाम आता था पोस्टरों पे, उन्होंने और गुलशन नंदा साहब ने भी कमाया था. तो ये हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हम छीनेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे. और यही इसीलिए तो SW है, इसीलिए तो ये अवार्ड्स हैं, ताकि राइटर का मान बने, सम्मान बने. जब हम अपने भाइयों का सम्मान और मान करेंगे तो दुनिया भी करेगी. चैरिटी बिगिंस एट होम. पूरी कोशिश यही है, पहले तो राइटर अपना खुद का सम्मान करना सीखे. जैसे अशोक जी ने कहा
और जैसे अंजुम ने कहा, ना कहना सीखे कि नहीं साहब ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ मेरा ही नाम आएगा, मैं इतने ही पैसे लूंगा और इस तरह से लूंगा। ना बोल के तो देखिए, ना बोलने से राइटर बेचारा डरता बहुत है। मैं बार बार बोलता हूं राइटरों को कि ना कहने से मत डरो, क्योंकि तुम जो कर सकते हो उस यूनिट में कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो प्रोड्यूसर या तो वो डायरेक्टर या तो एक्टर तुम्हारे पास आया। They know it very well. You don't know that you are unique. This is to understand that yes, we are unique and we deserve all that what we are asking. Thank you. Thank you, Robinda, for your very passionate talk. Can I ask Sunil ji to answer this question? Does writing reflect society or writing changes society? मैं पहले भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूं कि हम हमेशा कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, फिल्में समाज को आईना दिखा सकती है, और ये हमेशा होते आया। जब भी कोई प्रोग्रेसिव राइटर ने कोई ऐसी बात कही है जो समाज को आईना दिखाती है, तो समाज को सोचने पर मजबूर करती है, और उसके बाद समाज में बदलाव भी आता है। कई फिल्में हैं जिन्होंने बदलाव लाया है, और बहुत पुरजोर बदलाव आया है समाज में उन फिल्मों के कारण। तो ये अल्टीमेटली स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही हो पाता है। तो एक राइटर, हमेशा हम बात करते हैं कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, वो ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि उस कलम में वो ताकत है कि जो सल्तनतें बदल देती है। तो फिल्म, जब हम कहते हैं फिल्म घर घर में जाती है, हर बच्चे के दिमाग में, हर बड़े के दिमाग में उतरती है दृश्यों के साथ में, और वो दृश्य सारी जिंदगी उसके ऊपर, सारी जिंदगी उसके ऊपर असर डाले हुए रहते हैं। तो फिल्में बहुत सशक्त माध्यम है, और अगर सही ढंग से कही जाए फिल्में, तो वो सालों साल असर करती है और समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, मैं मानता हूँ। Thanks a lot, Sunil ji. The next question is from Sinestan. Keyur from Sinestan is asking Anjum Rajaballi, do you think social media has played a part in giving recognition and fame to the writers? Now they can directly converse with the viewers. Yeah, I agree. I think the democratization of the media by the advent of social media has certainly created larger and more platforms for writers to be recognized, where they are able to speak about their own film, their work, and thereby ensure that there is an acknowledgement by the public, given that their name appears with the film, even though it may not be there on the official publicity of the film, and they may not have been interviewed by the mainstream media, because generally stars do tend to hog the attention that should be distributed amongst the other important people in the unit. So yeah, social media I think has helped a lot. Plus writers get to write about their journey behind the scenes, their struggle, what their inspirations were, what their process is, and thereby it is this whole writing process, which was kept under a closet and generally directed by and starring and produced by used to be in the face. Here it's beginning to become more accessible, and I think that will most certainly make the audience look out for those writers on the posters, in the publicity, कि भैया अगर इस writer ने लिखा है तो कुछ बात होगी, because I have read his work and I think he writes very sensibly and he has great insights, and I think it is important. So this initiative writers should be taking to speak about their work. Thank you, Anjum ji. Can I Saket Chaudhary के लिए एक क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स में फीचर फिल्म्स को बहुत रिकग्निशन मिलता है, तो क्या राइटर्स उस सक्सेस के हकदार नहीं? क्या फेस्टिवल्स में एक राइटर जाके अपने फिल्म को रिप्रेजेंट कर सकता है? Writers are equal partners. Usually festivals invite both the directors and the writers, depending on the scope of what the film festival is. I feel I think जैसे अंजुम बोल रहे हैं कि there is a trend, even though I'm a director, that there is a trend to grant authorship of the entire film to directors, and I think that's very unfair. I think authorship should be shared between the writers and the director,
of the film, and therefore, if and festivals are a good place to start doing that. When festivals present a film, if they present it as the form that this is a film directed by so and so and written by so and so, then therefore that recognition then will start being widespread, and therefore their presence will also be widespread. जब panel discussions होते हैं film festivals पे, director के साथ साथ अगर वो writers को भी panel में बुलाएं, तो I think वो बहुत एक step होगा उनको recognition देने में. Sridhar, I would like to also add to what Saket said, that actually if you see, go to European festivals, because of the authorship, the word authorship is so important there, that many festivals actually, and in fact Cannes will put the writer along with the director on the stage. You know, it's the director, writer, and then rest of the people. That's how the author is recognized, as opposed to a writer of the film. You know, so there you have still a certain respect. They also accept, because I had attended one festival, they also accept writer instead of a director. Whereas a lot of times you say that, no, we would rather have an actor be present, you know, because of the red carpet issue. But in Europe, you do find a lot more respect for authors. So, yeah. And so if I may add just a little line here for our journalist friends especially, because there was a gentleman who was a great journalist who started the trend of the last page, and was also a great film writer and director, Khwaja Ahmad Abbas. When he won his first national award in 1962, he took his whole film team in a train to Delhi to receive the award. The whole team, anybody in the film sat in a second class compartment and went to Delhi, and he also did not fly by air, to which he was entitled to. He spent that money. I think that should be the spirit with the directors also, to take everybody along. You know, the other thing here, Sridhar, is the ownership credit which directors tend to take on the posters and the publicity. A film by Sridhar Rangayan. Okay, I think this is... No, you didn't. I'm merely... A film by Sunil Salgia. Because I'm speaking with you, I'm looking at you, so I'm saying that. So, you know, a film by, whatever, Hari Kumar. Or worse, a Hari Kumar film. How does that become your film? How are you getting possessive credit for this? You keep spouting in the media about filmmaking being a collaborative art, teamwork, collaborative. Everybody gives lip service to this. But when it comes to this credit, it completely belies their personal conviction. It is, they do believe that they want ownership. This hunger to constantly have this ownership, like he said, Meri Dal, you know. So why can't you just say directed by? Okay, if you've also written it, written and directed by. You edited it, written, directed and edited by. Come on now. Produced, written. How does it become your film? What happens to the cinematography and the other people who have contributed to it so much? And I think this is very questionable, and it really, I'm going to ruffle a lot of feathers of a hell of a lot of friends, because I have a lot of friends in the film industry and people that I've worked with who actually have this credit. Well, I'm afraid, I hope the message gets across that I think we should reconsider this. Let there be a little bit of humility here, and let there be some modesty in accepting that, yes, yours was this function. Other people performed other functions. Fantastic. Can I ask this question to Ashok Mishra ji and Vinay Shukla ji? When we say that a particular film script is good, then what do we mean by that? What are the components of a good script? मेरे ख्याल से गुड स्क्रिप्ट का फैसला सबसे पहले तो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो करता है, और सबसे आखिरी फैसला जनता करती है, दर्शक करते हैं. वहीं जाके फैसला होता है कि गुड स्क्रिप्ट क्या है. लेकिन जब आप काम शुरू करते हैं और काम एक ड्राफ्ट्स बनते हैं, जब उसके पहला, दूसरा, तीसरा, और ज्यादा आपका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको ज्यादा शोषक हुआ, एक्सप्लॉइट करने वाला हुआ, तो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अनगिनत ड्राफ्ट बनते हैं. जब तक कि डायरेक्टर सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक वो ड्राफ्ट्स बनवाता रहता है आपसे, जब तक उसको न लगे कि गुड स्क्रिप्ट. और इस चक्कर में कई बार वो स्क्रिप्ट को खराब भी करता जाता है. फिर वो कहता है नहीं यार, वो पहला वाला अच्छा था. तो भाई पहला वाला अच्छा था तो 9वां वाला क्यों तक लाया तू? ये वो नहीं समझता है.
इसलिए एक गुड स्क्रिप्ट बड़ा ही एब्सर्ड सा कॉन्सेप्ट है हमारे सिनेमा में, उसका कोई मापदंड नहीं है। अब जैसे एक अमेरिकन फिल्म मेकर है जो मुझसे अभी अप्रोच कर रहा है इन दिनों, वो एक फिल्म में मुझसे लिखवाना चाहता है कुछ, वो कह रहा है कि स्क्रिप्ट मैंने लिख ली है पूरी, आपसे मैं उसमें कुछ डायलॉग ठीक करवाना चाहता हूँ या स्क्रीन पे ठीक करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप मुझे क्रेडिट क्या देंगे जब आपने सारा लिख लिया है, तो क्या आप मुझे एडिशनल स्क्रीन पे डायलॉग का क्रेडिट देंगे? तो कहता है कि सर ऐसा है कि जब 75% अगर आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो आपको हम क्रेडिट देंगे। तो मैं कहा अगर 74% हुआ तो नहीं देंगे। तो बोलता है 75। मैं कहा इसका आप कैसे मेजर कैसे करेंगे कि 75% कंट्रीब्यूशन है किसी का? तो ये इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं राइटर्स को। एक बड़े डायरेक्टर हैं हमारे सिनेमा के, आप सब जानते होंगे पर उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं अभी, पर जल्दी ही लूंगा मैं। उन्होंने मुझसे एक फिल्म लिखवाई, मेरी एक कहानी ली, 7-8 साल हो गए आज। उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट बनवाया तो उसमें ये लिखवा लिया कि स्क्रीन प्ले हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आप एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, तो ठीक है हम करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें 1, 2, 3 सजेशन दिए, जैसा कि अंजुम जी ने कहा या और हमारे लेखक लोगों ने कहा, रॉबिन जी ने कहा, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, बाकी सारा लिख लिया। अब उसको बना नहीं रहे 6-7 साल से। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई साहब आप उनको वापस कर दीजिए कहानी। तो कहते हैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। तो मैं कहा कहानी पे आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कहानी मेरी है, स्क्रीन प्ले पे आपका कंट्रीब्यूशन। इस तरह के अजीब अजीब तरीकों से आपको फंसाया जाता है। तो इसमें हम राइटर एसोसिएशन का बड़ा, अब हमको हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारा एसोसिएशन है। अगर वो हमको समर्थन देगा तो हम गुड स्क्रिप्ट लिख पाएंगे, नहीं तो हमारी गुड स्क्रिप्ट की तो बैंड बजेगी हर जगह। So, Vinay ji, for you, the question is please give some names of films which changed society, which you think has changed society. अब यूं तो कोई डायरेक्ट एक इस तरीके से कि फिल्म ने चेंज कर दी, वो तो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह से क्या हो जाता है कि समाज में एक चेतना जरूर आ जाती है कुछ फिल्मों की वजह से। Can you say name some films? That's what they want to. या तो अब जैसे कि मेरा अपना ये मानना है, आई डोंट नो कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दीवार में जो विजय का कैरेक्टर था जो अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था, उसकी वजह से एक इतना जरूर हुआ कि जो जिसको हम लोअर क्लास कहते हैं, उस तबके में एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात जो है आई। क्योंकि उससे पहले का अगर आप देखें तो आपके यहाँ जो अगर हाउस हेल्प थी या जो सड़क पे आदमी था वो उस तरीके से बात नहीं करता था। और दीवार के बाद जब उसने कहा कि मैं आज भी ये मैं सिक्का नहीं उठाता, मेरी तरफ जो फेंका हुआ होता है, आई थिंक दैट एंड सब्सिक्वेंटली जो अमिताभ बच्चन के उसी तर्ज पे जो रोल लिखे गए थे, they did bring an awareness of self-respect among these people. और उसी तरह से जैसे कि गरम हवा है उस फिल्म का, अब मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या इफेक्ट हुआ था या मंथन का क्या इफेक्ट हुआ था, क्योंकि ये फिल्में कहीं आपको जो है एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स दे मेक यू अवेयर, एंड दैट आई थिंक दैट इज वेयर द फिल्म्स फंक्शन एंड्स, कि दे मेक यू अवेयर। उसके बाद वो चेंज आता है या नहीं आ पाता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स कि सोसाइटी उस टाइम सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और क्या हालात हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम फिल्मों में ट्रूथफुली अपनी सोसाइटी को जो है डिपिक्ट करते रहें, और वो जो हमारी नजर से हमको लगता है कि यार ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू है सोसाइटी का, तो वो एक चेतना जरूर लाता है लोगों में। तो वो एक, आई थिंक दैट इज वेयर अ फिल्म मेकर्स, दैट इज व्हाट अ फिल्म मेकर्स रोल इज। एंड व्हेन आई से फिल्म मेकर हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट्स द predominantly it is writer and director. Thanks a lot. I would like to add here to Vinay ji
जी जी जो एग्जाम्पल की बात है तो मैं 2-3 एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत बदलाव की तरफ लोगों को प्रेरित किया था और एक बदलाव लाया भी था कुछ हद तक। जिस देश में गंगा बहती है जब आई थी और उसमें जब डाकुओं की समस्या हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हुई थी, उस वक्त जब डाकुओं के सरेंडर की बात हुई थी तो एक ट्रेंड सा आया था डाकुओं के सरेंडर करने का उस फिल्म से इंस्पायर होके। तो उस फिल्म ने कहीं ना कहीं उन डाकू समस्या को सुलझाने में कुछ हद तक भूमिका अदा की थी। उपकार जब आया तो जो हमारे यहाँ जय जवान जय किसान का जो एक नारा दिया गया था वो घर घर में पहुंचा बिकॉज ऑफ उपकार फिल्म। टेलीविजन की बात करूं तो आई वॉज एसोसिएटेड विद टू शोज जहां उड़ान और रजनी। उड़ान जब आया तो उसके बाद में कई सारी लड़कियों ने पुलिस फोर्स में जाने के लिए प्रेरित हुई और कई सारी लड़कियां उस सीरियल को देख के पुलिस फोर्स में अप्लाई किया उन्होंने। रजनी ने आम महिला को ये एक ताकत दी कि आप जाके अपने राइट्स के लिए लड़िए। तो ये होता है सोसाइटी में फिल्मों का टेलीविजन का असर तो निश्चित रूप से होता है। बस एक थोड़ी सी सुनील जी एक बात कहूंगा कि जहां तक आपने ये जिस देश में गंगा बहती है किया जिक्र किया, तो उससे पहले विनोबा भावे का भूदान जो वो था वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका था और डाकुओं ने सरेंडर करना शुरू कर दिया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो जो कहानी थी जिस देश में गंगा बहती है वो उस बात से प्रेरित थी। तो आई डू नॉट नो हाउ इफेक्टिव its role was in making dacoits surrender to the government. I don't really know. In fact, लेकिन आपने जो बाकी Indian एग्जाम्पल्स दी, family, so it was a story which was told from Madhya Pradesh. We had a film distribution company, my father, and so they used to tell this कि उससे बहुत असर हुआ था ग्वालियर चंबल नहीं इलाके में। जरूर हुआ होगा, लेकिन उससे क्योंकि भूदान वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट बाय विनोबा, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और जहां तक, लेकिन ये आपने ये मैंने कभी इस बात पर जिक्र नहीं गौर नहीं किया था कि आपने जो रजनी और उड़ान की जो एग्जाम्पल दी वो बहुत सही एग्जाम्पल दी थी कि इट डिड ब्रिंग एन अवेयरनेस अमंग विमेन एंड गर्ल्स कि दे कैन बी इंडिपेंडेंट एंड दे कैन बी एडवेंचरस एंड दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स इफ दे टेक अ स्टैंड। दैट्स ट्रू। रॉबिन दा के लिए हैदराबाद local.com से एक सवाल है। Movies adapted from books, does such writing, which is an adaptation, have less preference for awards in comparison to original writing works, or both are treated equally? In some cases, book authors do not get awards, whereas his or her book, which has been adapted, gets an award to a screenwriter, but not to the author. Well, that should be in a different category altogether for the adopted screenplay or a film written which has been adopted from some book. It is a sad thing that an author who has written the book does not get the credit or the award. It should not happen. I feel that he is the first author of that story and he should get the award. अंजुम जी के लिए एक सवाल है। अविनाश पांडे, विश्ववार्ता अखबार मुंबई ब्यूरो चीफ। SWA अवार्ड्स में इस बार आप क्या नई चुनौतियां आप देख रहे हैं? थोड़ा सा अगर एक कदम पीछे हटे और देखें कि किस किस्म की फिल्में और किस किस्म का बाकी का जो है मटेरियल जो प्लेटफॉर्म्स पर मतलब वेब सीरीज और टेलीविजन पर जो आ रहा है, तो उससे ये चुनौतियां रिफ्लेक्ट होती है कि दी स्पेक्ट्रम ऑफ थीम्स एंड टॉपिक्स व्हिच आर बीइंग हैंडल्ड बाय यंग राइटर्स, ब्रेव राइटर्स इन particularly in Hindi cinema is constantly opening up. It is surprising us. एक तो ये सिंपल सी बात है कि एक जमाने में ये माना जाता था कि भैया स्पेसिफिसिटी, अगर कल्चरली स्पेसिफिक कैरेक्टर्स करो, मिलियो अगर स्पेसिफिक बनाओ, तो पैन इंडिया में नहीं चल सकता है, ऑल इंडिया नहीं चल सकता, बिकॉज बाकी के प्रांत के लोग जो है वो एलिनेट हो जाते हैं। ये इसको तो बिल्कुल राइटर्स ने गलत साबित कर दिया है कि जितना पर्टिकुलर, जितना स्पेसिफिक आप बनाइए उतना ही उसका यूनिवर्सल रेजोनेंस होता है, बिकॉज दे बिकम बिलीवेबल एंड आइडेंटिफाइबल क्रीचर, पीपल लाइक रियल लाइफ। ये दूसरी बात एक ये आई है कि स्पेसिफिक्स, एक स्पेसिफिक सब कल्चर में अगर कोई ऐसी एक कहानी हो रही है या कोई ऐसा हादसा हो रहा है, कैरेक्टर है,
उसके बारे में गहराई से लिखने में जो राइटर्स जो आजकल जो एक साहस दिखा रहे हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, क्योंकि दे आर ensuring that they know the world in which the story is set. Now that world has to be contextualized in such a way कि देखने वाला हो, चाहे वो जूरी मेंबर हो, चाहे वो SWA के प्री जूरी हो, चाहे वो दर्शक हो, कि उस दुनिया के कॉन्टोर्स को मद्देनजर रखते हुए उस कहानी में वो प्रवेश कर रहा है। तो ये जो है नजरिया जो है ये बदलते जा रहा है, अवार्ड्स में बदलना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल जो आ रहा है, जो फिल्में जिस तरीके से लिखी जा रही है वहां बदलाव आ रहा है दरअसल। सो चुनौती वहां से शुरू हो रही है। हम लोग तो है ये जूरी वाले जो लोग जो हैं और SWA वो तो उसको रिएक्ट कर रहे हैं। एक अगर चुनौती आप मानो जो ऑर्गेनाइजिंग को लेके आई, तो देखो ये है कि 31 मेंबर की हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो प्रोफेशनली एक्टिव मेंबर्स हो, मतलब आज भी वो लिख रहे हैं, चाहे टेलीविजन में हो, प्लेटफॉर्म पे हो, लिरिक्स पे हो या फिल्मों में। अब जाहिर है कि इनमें से कईयों की फिल्में जो है या कईयों के टेलीविजन सीरियल या लिरिक्स है वो भैया आएंगे, भाई कंसिडर होंगे जूरी में। तो यहाँ एक सवाल बिल्कुल उठता है कि भैया नेपोटिज्म का या किसी करप्शन का, फेवरेटिज्म का कोई आरोप तो ना लगे इसके अंदर। लेकिन यहाँ जो है एक मानना पड़ेगा, और मैं अंदर रहने की हैसियत से कह रहा हूँ, पिछले 12 साल से SWA में काम कर रहा हूँ लगातार, कि एक इंटेग्रिटी जो है इस संस्था की, एक आत्मविश्वास जो है उस इंटेग्रिटी पर, ये हमेशा बरकरार रहा है। यहाँ भी अगर आप जूरी में देखेंगे तो काफी सारे लोग हैं वो हमारे सीनियर वरिष्ठ लीडर्स रह चुके हैं, एंड आई एम श्योर वापस भी आएंगे। ये सब वाकिफ है इससे। इसके लिए जब ये लोग भी आते हैं अविनाश साहब जूरी में बैठने के लिए, एक विश्वास के साथ आते हैं कि ये पूरी सिस्टम जो है, पूरा प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट और अबव बोर्ड होगी। इसके अंदर जरा भी दखल अंदाजी हमारे में से किसी में भी जूरी पे नहीं जाती है। तनिक दबाव तो दूर की बात है, कोई हिंट तक नहीं जाता है इसके अंदर, और इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ भी अगर आप देखोगे कि श्रीधर रंगायन जो है, और ये मैं खुल के बात उठा रहा हूँ, श्रीधर रंगायन जो है वो अवार्ड्स कमेटी के चेयरपर्सन है, और अभी पता चला ये जेंडर सेंसिटिव स्क्रिप्ट के जो नॉमिनीज जो निकले, तो एक पता चला कि भैया श्रीधर रंगायन की एक फिल्म है वो इसमें चुनी गई है। ओके, उन्होंने भी एंटर किया होगा, सभी लोग एंटर करते हैं अपना वगैरह, लेकिन बिल्कुल उनको जूरी के प्रोसेस से एकदम ही दूर रखा गया। देखो ये जानते हुए कि वो है। ओके, आई विल नो दिस बिकॉज रॉबिन भट्ट और मैं दोनों एडवाइजरी मेंबर्स हैं यहाँ। तो ये कि इंसुलेशन जो है ये क्लियर है। दूसरी बात, जो आम अवार्ड्स के लिए चुनौती के लायक माना जाता है, हमारे लिए नहीं, वो ये कि फिल्म अगर बड़ी सक्सेसफुल हो गई है, बहुत लोगों को पसंद आ गई है, तो जूरी थोड़ी सी स्वे हो जाती है बाकी के अवार्ड्स में कि नहीं यार ये अच्छी ही होगी, तो इसलिए इसको भैया थोड़ा ज्यादा मायने दे देते, थोड़ा ज्यादा वेटेज दे देते। यहाँ इट वॉज merit and only merit, unconditionally so, above everything else. It doesn't matter if the damn film is a flop film. That is not the point. There may be, the jury's challenge is to figure out that it may have not worked for a series of other elements which might have come into the picture with the wrong casting, cinematography, editing, etc. But the writing is what they have to look at. But the writing worked. तो इसलिए आप देखोगे छोटी फिल्में भी हैं, बड़ी फिल्में भी है। इसमें आप देखो गली बॉय है जो काफी सक्सेसफुल हो गई थी, आर्टिकल 15 सक्सेसफुल हो गई थी, मर्द को दर्द नहीं हो गया, वो छोटी सी फिल्म आके चली गई। वो चिंटू का बर्थडे जो अभी जिसका नाम आया, वो भैया बेसिकली फेस्टिवल्स में आई और सीधी चली गई वहां से। हामिद जो है वो शायद ही बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी शायद। इट डजंट मैटर, दे स्टिल। तो ये जो अगर आप सोचते हैं कि दिस इज अ चैलेंज फॉर दिस बिकॉज द एटीट्यूड इज क्लियर एंड द जूरी हैज बीन हैंडपिक्ड, it doesn't remain a challenge because they have the ability to be able to separate the writing from the rest of these influences. Thank you. Sunilji, you want to add anything to that? Challenges regarding the award process? एक चैलेंज था कि जब हम शुरू हुए तो इतना जब हम अवार्ड
करेंगे, अवार्ड में खर्च भी होगा, अवार्ड के लिए इतनी सब तैयारियां भी होंगी और ग्राउंड इवेंट भी करना था, सब करना था। ये हमेशा बात होती रही कि क्या हमें उसके लिए कहीं से कुछ मदद लेनी चाहिए या कोई स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए। तो कमेटी ने तय किया कि हम शुरुआत में अभी इस वर्ष तो कम से कम बिल्कुल भी कोई मदद कहीं से भी बाहर से या कोई भी अवार्ड के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। उसका कारण ये था कि स्पॉन्सरशिप के साथ इन्फ्लुएंस आने का जो खतरा होता है, तो हमारे तो पहले हम अवार्ड को इतना पक्का कर लेंगे, इस अवार्ड का पूरा सिस्टम इतना बढ़िया डिजाइन कर लेंगे कि उसके बाद फिर कोई चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। और इसीलिए और दूसरा ये कि सितारों की भीड़ में खो न जाए, तो हम ज्यादा हमने वो भी कोशिश नहीं की कि हम सितारों को लाके और कुछ उस तरह से पूरा, हमारे राइटर्स सारे सितारे हैं और जो आज हमारे सामने जूरी में बैठे हैं ये सारे सितारे हैं, ये बड़े सितारे हैं। तो हमने वही कोशिश की है कि राइटर्स को प्रोमिनेंट रखा जाए और राइटर्स को ही सामने रखें। हम कोई कमर्शियल बहाव में नहीं आए, ये चुनौती जरूर है, लेकिन ठीक है, हमने इसको फेस किया है और अब मुझे लगता है कि अवार्ड सक्सेसफुल होगा। Thank you so much, Sunilji. Next question is to Robin Da, KU from Sinistan. My question is for Robin Butt, sir. What is a bigger contribution in a film, the basic story or the screenplay? Of course, the story is a must, and a good story is a must. But screenplay writing is a very technical job. You need to learn screenplay writing. Screenplay writing is a specific technology. So, of course, a good story on its own will not stand if there is no good screenplay. So, I give more weight to screenplay, slightly better than story, 5 grams or 10 grams maybe, but yes, screenplay. I go for screenplay. Screenplay is more important than story. Can others also reply? Ashok ji, Vinay ji, anybody on this question? मेरे ख्याल से अच्छी जो कहानी है वो अगर स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है तो फ्लॉप हो सकती है फिल्म, और 2 कौड़ी की कहानी है मगर स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा है तो चल जाती है फिल्म। तो स्क्रीन प्ले का एक अपना मैजिक होता है। हमने बहुत सारी फिल्में ऐसे देखी हैं जिसकी कहानी तो बहुत ही खराब होती है और फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट होती हैं। और हमने प्रेमचंद की भी कहानी देखी है, या हमने शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई थी वो भी देखी है। बहुत सारी फिल्में हमने ऐसी देखी हैं जिसमें कहानी तो लाजवाब है लेकिन फिल्म नहीं चली। तो वो स्क्रीन प्ले का ही मुझे लगता है जादू है। सिनेमा का लेखन स्क्रीन प्ले के बिना संभव नहीं है, अच्छे स्क्रीन प्ले के बिना। तो स्क्रीन प्ले का मैजिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं अशोक जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये कुछ वैसा ही रिश्ता है, क्योंकि माध्यम सिनेमा का है कि जो काम रॉकेट करता है एक सैटेलाइट के लिए, वही काम स्क्रीन प्ले करता है टू पुट इट इन द करेक्ट ऑर्बिट। अगर आपका सैटेलाइट बहुत अच्छा है लेकिन उसका लॉन्चिंग ठीक तरह से नहीं हुई, विच इज डन बाय द स्क्रीन प्ले टू पुट इट इन द करेक्ट ऑर्बिट, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा और क्या करेगा। इसलिए स्क्रीन प्ले का अच्छा होना, और ये जैसा अशोक जी ने कहा, हमने कितने तमाम उदाहरण देखे हैं कि अच्छी अच्छी कहानियों को भी एक खराब स्क्रीन प्ले ने बर्बाद कर दिया है। और कहानी अगर थोड़ी नींव अच्छी भी है तो उसको एक अच्छा स्क्रीन प्ले बहुत सिनेमा के ऑर्बिट में बहुत अच्छी तरह से उसको लॉन्च कर सकता है। श्रीधर जी, ये सवाल आपने अंजुम को पूछना चाहिए। अंजुम is the best person to reply on this. You basically asked you, and basically, so I addressed it to you. So basically, I want to close the press conference. Any closing thoughts, Vinay ji and Saket ji and Urmi ji? No, just want to thank the friends from the media, and I would like to say that it is an excellent beginning for SWA, and we are really all honored to be a part of this jury, and it has been, the process was an extremely transparent and fair one. I just want to say one thing to media. SWA award this year, this is a baby. It will grow bigger and bigger, but not without the help of media. We need your help. Push it. Give us an encouragement. Hold our hand and let us walk.
Thank you. Saket and Murmi? I just wish that these awards become extremely popular, because जितनी इनकी popularity बढ़ेगी उतना ही initiative बहुत सारे लोग लेंगे to become screenwriters, to improve their craft. I mean, this is, I think the big thing about these awards is that unlike other awards which are essentially TRP vehicles, this is a vehicle for writers to express their talent. Well said. See, I think everything is being said and said it very well. I think it's a great initiative, really long overdue, and I look forward to all the awards and the winners, of course, in other categories. And yeah, it's just great to be Thank here. you. Thank you, Murmi. So thanks a lot. श्रीधर जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो, बिल्कुल, कि जो अभी एक थोड़े दिनों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे और अमिताभ बच्चन थे, उन दोनों के नाम सारी दुनिया ने देखे, लेकिन उसके पीछे एक जूही चतुर्वेदी भी थी, शायद उनका नाम बहुत से ऑडियंसेस को पता भी नहीं होगा। वैसे ही आज हम लोग तो स्टार की तरह, हम जो जूरी वाले थे वो सामने आ गए हैं स्टार्स की तरह, लेकिन हमारे पीछे एक पारुल हैं और एक ऋचा हैं और एक जागृति हैं और हमारी प्री जूरी है और बहुत से लोग हैं। मैं उन सब का भी शुक्रिया करना चाहूंगा और प्रेस वाले से कहना चाहूंगा कि उनका भी नोट जरूर लें, जिन्होंने हमारा काम इतना आसान करके हमें स्टार बना दिया है। Yes, I will thank you for bringing it up. Yes. Yeah, thanks on behalf of all of us. And एक चीज आखिर में, अगर इजाजत है आपकी श्रीधर जी, कि वो जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं हमारे मीडिया से, कि वो जब डायरेक्टर का नाम देते हैं तो राइटर का नाम लिखना ना भूलें अपने जहाँ पे भी जिक्र करते हैं फिल्म का। Thanks a lot. Can I just have a smiling picture of all of you, please, for a minute? So thanks a lot. Really, closing this particular conversation. It's been great talking to all of you, and may the best win. The award ceremony will be held on September 27th, 6 p.m. onwards, on the SWA Awards social media handles, SWAindia.org and Screenwriters Association on YouTube. Thanks a lot. Thank you, everybody.